Welcome to Shruti Out Loud. Hi, and welcome back to another episode of Shruti Out Loud podcast. By the way, before going ahead with today's discussion, I realized that it has been 3 months since I started my podcast, since I started inviting guests from different walks of life and talking to them about different things like, their journey, their basically how did they reach where they are. I have had musicians, I have had authors, I have had uh, people who founded NGO, a teenager who is an entrepreneur. So basically, a vast array of people have been on Shruti Out Loud so far. And as I said, that it has been 3 months already, and we have invited 22 guests so far. And today, my aunt, my chachi, she is going to be in this session, and this session is going to be about Sanskrit. So, the reason why I chose this particular topic is because, she I have seen her since my childhood, and she is one person who is so dedicated, so passionate about Sanskrit. But as a kid, so far I was never like, I never really sat with her and talked to her about these things. But on this podcast, I think this is an amazing opportunity for me to have a conversation with her about her journey, about her some of her, the choices that she made in her life, and how everything sort of brought her here where she is today. So yes, also just a heads up, so I she is my chachi, so I am going to call her chachi, and my nickname is Sammy, so that's what she is going to refer me by, Sammy. So without further ado, I will take this episode ahead. And the main thing is that this episode is going to be in Hindi, and I wish I knew Sanskrit, and we could have that conversation in Sanskrit. But anyway, I can just contribute just a little when it comes to Sanskrit. So let's go ahead with it. Chachi, please मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई गलत pronunciation हो जाए तो. So here it goes. इदं कथयन्ति अहं अतीव प्रसन्ना अस्मि यत् अस्माकं अद्यतनीया अतिथि अस्ति Dr. Sandhya Sharma. And now I'll send her the request, and let's take this conversation ahead. Guys, if you have any questions about Sanskrit and anything about it, just feel free to ask those questions. And also, yes, I wanted to address this part also, that the topic of my today's discussion is Sanskrit, a living language. So I particularly chose this word because for many years I have been hearing this thing that Sanskrit is a dying language. Sanskrit is a dying language, which it really isn't. So I thought that why shouldn't we just name this episode like, yes, Sanskrit is a living language. It's very much there. It's being used. It's still being, people still, yeah, basically the conversation, they do happen in Sanskrit. So yes, Sanskrit is a living language, and let's call Chachi for this discussion. All right. Finally it's working. Chachi, namaste. नमस्ते। तो मैंने पहले वो संस्कृत में मैंने एक वो लाइन बोला था, पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने वो सुनी या नहीं। आधा सुना था और कट गया था बीच में। अच्छा, अब बस मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि मैंने वो सही से बोली थी और सब कुछ, मतलब बेसिकली प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब कुछ इन प्लेस था। मैंने पूरी कोशिश करी थी, मैंने बहुत उसको ना बोल बोल के अभी रिवाइज किया था कि ठीक है, सही से होना चाहिए। और मुझे लगा कि तुम संस्कृत भी बहुत अच्छी बोल सकती हो। और कई बार कहीं ऐसा होता है कि जो चीज आंखों के बहुत करीब होती है ना, वो दिखती नहीं है। तो तुम यही कह रही थी कि मुझे चाची के साथ बैठकर बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि हम बहुत करीब रहे और हमारे जो क्षेत्र थे, जो वर्किंग फील्ड थे, वो थोड़े अलग थे। तो आज चाची पकड़ में आ गई। अब पूछो जो। बिल्कुल चाची, मैंने बिल्कुल ये इसीलिए सोचा क्योंकि वरना ऐसे ना बैठ के कभी इस तरह से बात हो नहीं पाती।
कि ऐसी जैसे, क्योंकि चाची हो, मैं आपकी भतीजी हूँ, तो वो रिश्ता हमेशा कहीं ना कहीं वो बीच में आ ही जाएगा, और शायद कहीं ना कहीं मैं हिचकिचाऊंगी, या कहीं ना कहीं शायद वो हिचकिचाहट बनी रहेगी। तो मुझे लगा इस प्लेटफॉर्म पे लाके ये कॉन्वर्सेशन ज्यादा अच्छे से हो पाएगी, ज्यादा ब्यूटीफुली हो पाएगी, और ज्यादा खुल के हो पाएगी, जहां पे शायद जो क्वेश्चंस मैं आपसे अदरवाइज ना पूछ पाऊं, शायद इस प्लेटफॉर्म को यूज करके मैं ओपनली वो चीजें मैं आपसे एक्चुअली पूछ पाऊंगी, आपकी जर्नी के बारे में जान पाऊंगी, आपके क्या, आपकी इतनी सारी चीजें, बेसिकली आपकी लाइफ इतनी अमेजिंग रही है जिसके बारे में कभी बात करने का मौका नहीं मिला। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चाची, मैं पहला मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि मैं चाहती हूँ कि आप बेसिकली अपना बैकग्राउंड है, आप थोड़ा सा अगर आप बताओगे तो हमारी जो ऑडियंस है उनको भी थोड़ा पता चलेगा, और मुझे भी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आपके बारे में वैसे एज अ बच्चा तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन अब मैं एज अ होस्ट सुनना चाहती हूँ। हाँ, संस्कृत के फील्ड में लेकर के जो बात तुम पूछना चाह रही हो, क्योंकि आज हमारा जो खास मुद्दा रहेगा वो संस्कृत रहेगा। तो बचपन से ही मुझे अपने घर में वो वातावरण मिला जहाँ संस्कृत और संस्कृति को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। तो उस श्रद्धा का मेरे मन में ना आए, मैं उससे अछूती रह जाऊं, वो तो हो नहीं सकता था। तो उसी वातावरण में रहकर संस्कृत के प्रति प्रेम का बीज मेरे मन में आ गया। और जब संस्कृत विषय चूज करने का मौका आया तो कुछ सोचने का विकल्प ही नहीं था, संस्कृत पढ़नी ही पढ़नी है, इसलिए मैंने संस्कृत को ऑप्ट किया। अच्छा, तो चाची मेरा आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि आपका पूरा जो वातावरण था वो संस्कृत और संस्कृति बेसिकली इन चीजों से भरा हुआ था, तो आप इस बारे में थोड़ा सा मे बी थोड़ा एग्जाम्पल दे के या कुछ ऐसा रेफरेंस दे के कि ऐसा कैसे? घर में जो भी उपासना होती थी वो वेद मंत्रों के माध्यम से होती थी, और वैदिक संस्कृति की और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की बातें, उसकी चर्चाएं घर में चलती रहती थी। तो वो जैसे बच्चा सुनता है उसी को ग्रहण करता है, तो मैंने वही सुन करके अपने माता पिता से, अपने दादा से, अपनी बड़ी बहनों से, तो मुझे लगा संस्कृत बहुत अच्छा विषय है, इसी विषय में जाना चाहिए। हाँ जी चाची। तो नंबर भी इसमें अच्छे आते हैं क्योंकि ये स्टोरी सब्जेक्ट है, तो इसके प्रति लगाव और बढ़ता गया। तो चाची ऐसा कभी होता था क्या कि शायद अगर आपके घर में जो, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली हिंदी में ही बात होती है, बट कभी क्या ऐसा कभी होता था कि कॉन्वर्सेशन में कुछ संस्कृत की चीजें, एग्जाम्पल्स या रेफरेंसेस आ जाते हों, जैसे ऐसा कभी हुआ था? नहीं, घर में संस्कृत बोलने का वातावरण नहीं था। वो तो जब आगे पढ़ाई की, स्कूल और कॉलेज में जाकर के, वहां जाकर संस्कृत का वातावरण मिला, तो टीचिंग का भी मौका मिला। तो चाची मेरा यहाँ पे ना आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे को ये चीज आई है, मतलब मेरे को एकदम ऐसा रियलाइज हुआ कि जैसे हमारी नॉर्मल हम जो लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश हम बोलते हैं, तो हमें लोग मिलते हैं बात करने के लिए, तभी ये कॉन्वर्सेशन हो पाती है। तो आपकी जो आपने जिसमें स्टडी करी है, संस्कृत एक बिल्कुल ही अलग, एक ब्यूटीफुल, एक डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन क्योंकि इतने लोग ये भाषा इतना बोलते नहीं है, तो क्या वो चीज आपको थोड़ा आप मिस आउट करते हो कि काश कोई ऐसा मेरे आसपास कोई होता जिससे मैं संस्कृत में कॉन्वर्सेशन कर पाती होती? जो ज्यादा लोग हमें मिलते हैं वो तो संस्कृत नहीं बोल पाते, लेकिन क्योंकि मैं संस्कृत की हूँ इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ जो संस्कृत बोलना जानते हैं। तो मुझे जब लगता है कि संस्कृत बोलनी चाहिए तो मैं उनको फोन करती हूँ। जब बहुत है तो मैं स्पेशली उन लोगों को फोन करती थी, क्योंकि मेरे मन में हुड़क उठती थी कि अब संस्कृत में बोले, किससे बोले, चलो उन्हें फोन करती हूँ। तो इस तरह अब काफी लोग हैं जो संस्कृत में बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हिंदी में बात करते हैं तो बड़े अजीब लगते हैं, संस्कृत उनके मुंह पर बड़ी सूख लगती है, तो कहना पड़ता है भाई तुम संस्कृत में ही बात करो, तुम्हारे मुंह पर तो संस्कृत ज्यादा अच्छी लगती है। हिंदी आती है, उनको इंग्लिश भी आती है, लेकिन संस्कृत
बोलने का अभ्यास उनका इतना अधिक है और हमें भी उनके मुंह से सुनने की इतनी आदत है कि वो संस्कृत में बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अरे, ये तो मुझे सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे बेसिकली क्योंकि क्या हो गया है, जैसे स्कूल्स वगैरह में भी अब जो एक बच्चे जो एडिशनल लैंग्वेज लेते हैं वो वेस्टर्न हमारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, फ्रेंच आ गई है, जर्मन आ गई है, इटालियन, चाइनीज, जापानीज, ये सब आ गई है। और ऑल्दो मैंने, मेरी जनरेशन ने और उसके बाद के भी कुछ बैचेस ने जरूर संस्कृत पढ़ी, बट वो कॉन्वर्सेशन कभी हो नहीं पाई। और लेकिन जो आजकल के जो वेस्टर्नाइज्ड लैंग्वेजेस जो बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि उन सब के सीरियल्स, मूवीज, गाने सब कुछ अवेलेबल है, बट क्योंकि जब हम संस्कृत पढ़ रहे थे समहाउ हमें वो सारा एक्सेस नहीं मिला, तो शायद अगर उस टाइम पे हमें भी ये डायरेक्शन मिली होती तो एटलीस्ट बेसिक्स हम संस्कृत में जरूर वार्तालाप कर पाते होते। जरूर होता है, जिस तरह दूसरी भाषाओं में गीत मिलते हैं, कहानियां मिलती हैं, इसी तरह से संस्कृत में भी अवेलेबल हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं वो वीडियो तुम्हें दिखाऊंगी। आज तो इतना मौका नहीं है, बात कर पा रही है यही बहुत है, कनेक्शन ही बीच में कट रहा है। लेकिन कलाएं उपलब्ध हैं। मैंने खुद संस्कृत में गीत लिखा, उसको गाया भी, कभी भेजूंगी तुमको। बहुत साहित्य रचा जा रहा है, गीत रचे जा रहे हैं। इसको हम मृत भाषा नहीं कह सकते, जैसा कि तुम शुरू में चर्चा कर रही थी कि इसको मृत भाषा कहा जा रहा है, डाइंग लैंग्वेज कहा जा रहा है। हाँ, हाँ। मरता वो है जो दिखता नहीं है। क्या तुम्हें संस्कृत दिखती नहीं है अपने आसपास? तुमने मुझे कहा नमस्ते चाची, नमस्ते कहाँ का शब्द है? संस्कृत का है। मतलब है मैं तुम्हें सम्मान के साथ अभिमान रहित होकर तुम्हारे सामने झुक रही थी। कितना सुंदर शब्द है, किसी और भाषा में इस तरह का अभिवादन करने का तरीका नहीं मिलेगा, है ना? तो हाँ जी। पूजा पाठ होता है, वहाँ संस्कृत चाहिए। संस्कृत ना आपके घर की पूजा पाठ चल ही नहीं पाती। जब आपको पूजा करवानी है तो आप कहते हो भाई कोई पंडित जी बढ़िया से हो तब मजा आएगा। तो पानी दे। तो संस्कृत पढ़ी जाएगी तभी आपको अच्छा विद्वान उपलब्ध होगा, अच्छा पंडित उपलब्ध होगा। तो संस्कृत में अच्छे पंडित हैं, अच्छे विद्वान हैं। जो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो उन्हें ढूंढ लाते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत लोग हैं, अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो मैं जरूर दूंगी। तो वो पढ़ रहे हैं तभी तो भाषा जीवित है ना? तो काम तैयार हो रहे हैं, संस्कृत में साहित्य रचा जा रहा है, संस्कृत बोली जा रही है, तब तक ये मृत भाषा नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं। ऑनलाइन भी इसकी क्लासेस चलती हैं, जो लोग इच्छुक हों उसको ज्वाइन कर। हाँ जी। भाई जैसे क्योंकि मैंने इस एपिसोड का नाम ही इसीलिए रखा क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें संस्कृत को जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें रखा जा रहा था। और जैसे लैटिन को कहा जाता है कि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज नो, कि लैटिन की चीजें सब कुछ पास्ट में है, अब प्रेजेंट में कोई वो लैंग्वेज यूज नहीं करता। तो शायद मेरे ख्याल से 10 साल पहले, पता नहीं 5-6 साल पहले मैंने ये आर्टिकल पढ़ा होगा जहां पे ये बोला जा रहा था कि संस्कृत भी उसी राह पे जा रही है। तो वही क्योंकि लेकिन मुझे पता है और आपके साथ इतनी बातें हुई हैं जिसमें पता चला है और खुद भी पता है अपने देश में रह के और इतनी सारी चीजें, क्योंकि अब तो ग्लोबली भी आपको न्यूज एक्सेस हो जाती है। तो जैसे एक यूके में एक स्कूल है जहाँ पे संस्कृत सिखाई जाती है, और तो आप ये कह ही नहीं सकते कि ये डेड लैंग्वेज है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा नाम इस लैंग्वेज इस एपिसोड के लिए हो ही नहीं सकता कि संस्कृत इट इज अ लिविंग लैंग्वेज। बिल्कुल, क्योंकि संस्कृत आगे चल रही है। हाँ, हम इसे मृत इसलिए कह देते हैं, मरी हुई इसलिए कह देते हैं क्योंकि जितना महत्व इसे मिलना चाहिए, जितना शोर इसका मचना चाहिए, उतना हमें अपने वातावरण में दिखाई नहीं देता। तो हमें लगता है कि ये तो इग्नोर्ड है, ये तो मृत हो गई। ऐसा नहीं है। इसे सीखना चाहते हैं, उनके मन में उत्कंठा है कि हम जाने कि संस्कृत में क्या है। धीरे धीरे बढ़ रही है यह जिज्ञासा, जैसे तुम्हारी बढ़ रही है। संस्कृत को सीखूं, इस तरह बहुत लोग हैं
लेकिन उनकी मात्रा कम है। अगर हम इसका प्रचार करेंगे तो अवश्य ही वो हमारे इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। चाची, यहाँ पे मैं एक चीज संस्कृत में हाँ हाँ यहाँ पे मैं एक चीज संस्कृत में बोलना चाहूंगी जो मैंने आपसे पूछी थी। एतत् रुचिकरम। बहुत अच्छा रोचते मह्यम। अब करना पड़ेगा। बहुत अच्छा बोला। संस्कृत में प्राचीन साहित्य बहुत लिखा गया जिसके बारे में भी लोग बहुत कम जानते हैं। वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, रामायण महाभारत तो आज भी हमारे आदर्श हैं। उसके बाद बहुत सारा लौकिक साहित्य, कालिदास, भवभूति, सुबंधु, बाण, दंडी, कितने ही कवि हैं, भवभूति हैं, भास हैं, जो संस्कृत साहित्य में अपना मानदंड स्थापित कर चुके हैं पिछली शताब्दियों में। लेकिन इन शताब्दियों में भी ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो अपना साहित्य लिख रहे हैं। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्लेकर है, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, बहुत अच्छा साहित्य लिखते हैं, बहुत अच्छी कविताएं करते हैं। तो इन सब के चलते हम नहीं कह सकते कि संस्कृत मरी हुई भाषा है। हाँ, जितना इसे बढ़ना चाहिए था, भारत में सभी भाषाओं की जननी होने के कारण उतना सम्मान इसे नहीं मिल पाया, इसलिए हम कहते हैं कि ये मृत है। लेकिन जब तक हम भारतीय हैं ये जीवित है। बिल्कुल। अच्छा चाची, मेरे को यहाँ पे आपसे, क्योंकि आपने वेदों का मेंशन किया, तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जिसमें से एक छोटा सा मिथ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि वेदों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वेद एक तो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत पर्टिकुलर उनको माना जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि शायद स्त्रियां भी उसको नहीं पढ़ सकती हैं। तो ये बातें कहाँ से आती हैं और इनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि लोग क्यों हिचकिचाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है सनी। इस भ्रांति का निराकरण करना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहती हूँ कि वेद पढ़ने का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो बोल सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, कोई कारण ही नहीं है कि वो वेद न पढ़ सके। ठीक है, एक कोई मुझसे तर्क करता है तो मैं उसे कहती हूँ कि नहीं, जो अगर आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, सुन सकते हो, उच्चारण कर सकते हो, समझ सकते हो, तो आप वेद पढ़ सकते हो। कोई एक तर्कवादी होगा, वो मेरी बात सुनकर संतुष्ट हो जाएगा, हाँ ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो प्रमाणवादी होगा वो कहेगा जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिलेगा इस बात का, मैं तो इस बात को स्वीकार नहीं करता। तो इसका प्रमाण हमें वेद में ही मिलता है। वेद के, यजुर्वेद के 26वें अध्याय का मंत्र है जहाँ कहा गया, यथे माम वाचम कल्याणम आवदानी जनेभ्यः ब्राह्मण राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वराय चारणाय। सारी कोटियां, सारी कैटेगरीज इसमें कवर हो जाती हैं। हम मानते हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। मैं इसकी चर्चा भी थोड़ी देर में करती हूँ तुम्हारे साथ। उसमें हमें ये कहा गया कि मैंने इस कल्याणी वाणी को सभी लोगों के लिए बोला है। कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट आता है तो उसका मैनुअल साथ में आता है ना। इसी तरह से हम मानते कि ईश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो उसने वेद का ज्ञान हमें दिया ताकि मनुष्य उस वेद ज्ञान के सहारे अपना जीवन चला सके। तो उस समय मंत्र कहता है, ब्राह्मण राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संस्कृत और असंस्कृत सभी लोगों के लिए मैं इस वाणी को बोल रहा हूँ। जब वेद में स्वयं ही यह बात आई है तो इसका मना करना वर्ग विशेष के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं। और जो दूसरी बात मैंने अभी तुमसे कही थी कि ईश्वरीय ज्ञान है ये वेद। हम मानते हैं कि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने यह ज्ञान ऋषियों की आत्माओं में दिया। ऋषियों ने आगे अपने शिष्यों को सुनाया, उन शिष्यों ने फिर अपने शिष्यों को सुनाया। ये सुनकर यह ज्ञान आगे बढ़ता चला गया।
सृष्टि के आदि से चल रहा है। वेदों को लिपिबद्ध तो बहुत बाद में किया गया, हम तब से उसका रचना काल मानते हैं, लेकिन हमारे भारतीय परंपरा इस विषय में बिल्कुल सुनिश्चित है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। और सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों की आत्माओं में, जिन्होंने बहुत तपस्या की थी, जिन्होंने बहुत साधना की थी, उनकी आत्माओं में यह ज्ञान अवतरित हुआ। आगे गुरु शिष्य परंपरा से यह आगे बढ़ता गया। इसीलिए वेद ज्ञान को सैमी श्रुति भी कहा जाता है, जो तुम्हारा नाम है। श्रुति नाम जी चाची, क्योंकि इसे सुन सुनकर आगे बढ़ाया गया। और इसके मंत्रों के जटा पाठ, घन पाठ, शिखा पाठ भी उपलब्ध होते थे। जैसे पहले शब्द को 2 बार बोला, फिर पिछले शब्द को रिपीट कर दिया। तो ये एक चेकआउट था वेद मंत्रों पर, ताकि कोई अपनी तरफ से इसमें कुछ सम्मिलित ना कर सके। ये शिखा पाठ, जटा पाठ, ये सारे वेदों की चेकलिस्ट हैं, जिससे पता चलता जाए कि वेदों में कुछ सम्मिलित नहीं किया गया। आज हमारा बहुत सारा साहित्य देशी आक्रमणकारियों की वजह से लुप्त हुआ है, लेकिन आज वेद हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध है। तो ये वेद के ज्ञान के बारे में है। और दूसरा कोई प्रश्न हो बोलो, फिर मैं बाद में तुम्हें बताती हूँ। पहले तुम्हारे मन में क्या है? हाँ जी चाची, तो हाँ, बेसिकली मैं फिर ये जानना चाह रही हूँ कि अगर जैसे वेदों की इतना जो महत्व है, तो चाची बेसिकली ये फिर मिसिंग एक क्यों है, एक ब्रिज क्यों मिसिंग है? लोगों को क्यों इसके बारे में इतना नहीं पता? अगर मतलब ये बात है तो हर घर में क्यों वेदों की चर्चा नहीं होती? क्यों पेरेंट्स इसके बेसिकली कुछ हैं जो अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? तो ये कहाँ, ये इतना बड़ा गैप कैसे और क्यों आ गया? ये गैप हमारे प्रमाद और आलस्य के कारण आया। एक समय ऐसा आया जब कुछ वर्ग था जिसने सोचा कि ये वेद ज्ञान तो हमारे अधिकार की बात है, बस हम जैसा कहेंगे वैसा लोगों को मान लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाकी वर्गों को इस वेद ज्ञान को लेने से, इसका स्वाध्याय करने से, पढ़ने से वंचित कर दिया। उन्होंने अपना भी स्वाध्याय कम कर दिया और औरों को तो करने ही नहीं दिया। उस वर्ग विशेष की वजह से ये धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन अब जैसे जैसे जागृति बढ़ रही है, लोगों को लग रहा है वाकई ही एक अनमोल ग्रंथ है। आज तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान लिया कि ऋग्वेद इस विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। तो लोगों के मन में जिज्ञासा उठती है कि जाने तो सही ये क्या है। ज्यादातर लोगों ने ये माना, मुझे नहीं मालूम आप लोगों के मन में या आपके मित्र समूह में किस तरह की भ्रांतियां हैं। लोग समझते हैं कि वेद बस एक कर्म कांड की बात है, इसे यज्ञ करवाना है, हवन करना है, इसके अलावा इन मंत्रों का और कोई लाभ नहीं है। क्या मैं सही हूँ अगर ऐसा कह रही हूँ? लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा है, वेद में उपासना की बातें हैं। ज्ञान, कर्म, उपासना, तीनों विषयों को लेकर के वेद आगे बढ़ता है। ईश्वर की उपासना की बात वेद करता है और वेद की विशेषता है कि वो एक ईश्वर को मानता है और कहता है तस्य प्रतिमा न अस्ति यस्य नाम महद यशः। जिसका इस संसार में बहुत नाम है, बहुत बड़ा यश है, उसकी प्रतिमा नहीं है। हमने देखा ही नहीं उसको, तो हम उसकी प्रतिमा कैसे बनाएं? मैं अगर बहुत अच्छी ड्राइंग जानती हूँ तो मैं सैमी की प्रतिमा बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने सैमी को देखा है। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं तो उसकी प्रतिमा नहीं बना सकते। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो ईश्वर है? केवल तुमने कहा और मैं मान लूं? एक प्रमाणवादी ऐसा नहीं कहेगा, उसे प्रमाण चाहिए। जो चीज सामने दिखती है उसको तो हम कह देते हैं कि ये ऐसी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें अनुमान के सहारे मानना पड़ता है। वेदों में इस तरह के मंत्र मिलते हैं जहां ये कहा गया कि इस सृष्टि में उपलब्ध सागर, समुद्र, संवत्सर, अर्णव, नदियां, पहाड़, ये सब ईश्वर का साकार रूप है। इन सबको देखकर हमें अनुमान लगता है कि ईश्वर की सत्ता अवश्य है। तो वेद एक ईश्वर को मान करके चलता है और हम सबसे उम्मीद करता है कि हम उसकी उपासना करें। और उपासना का विषय सामवेद में आता है। 4 वेद हैं, ये तो मालूम ही होगा,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में ज्ञान, कर्म और उपासना की बातें कही गई हैं। और सामवेद में मुख्य तौर पर उपासना की बात आती है। ज्ञान की बात भी आती है, कर्म की भी आती है, लेकिन उपासना की बात आती है। और अथर्ववेद ज्ञान की बात करता है, यजुर्वेद कर्म की बात करता है और अथर्ववेद विज्ञान की बात करता है। ठीक है। और इसके अलावा वेदों की विशेषताएं ये हैं कि उसकी शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं। ईश्वर भारतवासियों का है ऐसा तो नहीं है, अमेरिकन का भी है, दूसरी जातियों का भी है, दूसरे देशों में रहने वाले लोगों का भी है। तो जो उपमान प्रकृति में मिलता है, भारत में मिलता है, वो इंग्लैंड में भी मिल रहा है। उसी उपमान से वेद हमें आदेश देता है। एक मंत्र बताती हूँ, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्गदता अग्नता जालता संगमे मही। हमारा फोकस केवल पहले भाग पर रहेगा। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ, कि हम कल्याण मार्ग पर चलें। हम कल्याण मार्ग के राही कैसे बने? जब सूर्य और चंद्रमा की भांति अनुकरण करेंगे। सूर्य और चंद्रमा भारत में ही दिखते हों ऐसा तो नहीं है। हम किसी भी देश में चले जाएं, हमें सूर्य और चंद्रमा मिलेंगे। सूर्य और चंद्रमा की जो विशेषताएं भारत में है, बाकी दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भी वैसी ही विशेषताएं मिलती हैं। तो वेद ने बीज रूप में कह दिया कि हम अपने जीवन को सूर्य और चंद्रमा की भांति चलाएं। जो विशेषताएं सूर्य और चंद्रमा में हैं, उन विशेषताओं से हम अपने जीवन का मिलान करते जाएं और आगे बढ़ें। सूर्य नियम से उगता है, हम भी नियम के पक्के बने। सूर्य अपना प्रकाश चंद्रमा को देता है, हम भी किसी को देने में कंजूसी ना करें। ठीक है। इस तरह सूर्य बहुत ऊपर से चढ़ करके देखता है, कहाँ अंधकार रह गया, वहां प्रकाश का करता है, वहां ऊर्जा का संचार करता है। तो हम भी जहां रहें वहां प्रकाश फैलाएं, ऊर्जा का संचार करें। ये कुछ बातें वेद कहता है, ताकि इस विश्व के सभी लोग अपने जीवन को इस मार्ग पर चला सकें। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि वेदों में केवल ज्ञान, कर्म, उपासना की बात कही। वेदों में राष्ट्र कैसा हो इसकी बात कही। प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करे, प्रजा अपने राजा के साथ कैसा व्यवहार करे, इस बात की भी चर्चा हमें मिलती है। और अपने जीवन के दैनिक जीवन में छोटे छोटे जिन व्यवहारों को हमें चलाना चाहिए, उनके बारे में भी वेद कहता है। वेद कहता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। बहुत सिंपल सी बात है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हम अपने कानों से भद्र सुने, हम अपनी आंखों से भद्र देखें, अच्छा देखें। ये किसको जरूरत नहीं है आज अपने समाज को, अपने राष्ट्र को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए, अपने परिवार को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए हमें इन शिक्षाओं की जरूरत है। तो ये बातें भी वेद में बताई गई हैं। अगर हम, हाँ, कमी प्रचार की रही है, हमने लोगों को बताया ही नहीं कि वेद क्या है। जो जानकार थे उन्हें आगे आना चाहिए था, बताना चाहिए था वेदों के बारे में। ये कमी रही है, इसीलिए ये लगता है कि वेद किसी को पता नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि वेद कुछ हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। बिल्कुल चाची, मुझे लगता है कि ये आपने जो टॉपिक एड्रेस किया है, इसकी एक बहुत बहुत नीड है, जिसके बारे में बातें होती नहीं है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो लोग उसके बारे में जानेंगे कैसे? तुमने अभी शुरू में एक बात और कही थी कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। वेद स्त्रियों के बारे में मालूम है कितनी सुंदर बात कह रहा है। जो वेद स्त्री के बारे में इतनी सुंदर बात कह रहा है, स्त्री उस अधिकार से वंचित कैसे हो सकती है? ये कुछ स्वार्थी लोगों ने, आलसी लोगों ने, जिन्हें लगे कि हमें अब स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, वेद पर शोध नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, उन्होंने समाज में जो प्रचारित किया लोगों ने मान लिया। हाँ जी, पंडित जी ने कहा है ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। वेद एक स्थान पर स्त्रियों के लिए कहता है, स्त्रियां अशास्त्रम मनः,
बहुत बड़ा मंत्र है, उसका छोटा सा हिस्सा है, स्त्रिया अशास्यम मना, कि स्त्री का मन शासन करने योग्य नहीं है। ये कहकर के मानो वेद ने ये संदेश दिया कि स्त्री ईश्वर की इस सृष्टि की कोमल कृति है, उसका मन बहुत कोमल है। हमें अपने सद्व्यवहार से उसके मन को सदा संतुष्ट रखना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। जब इस पूजन से वो तृप्त हो जाएगी तो वो अपने परिवार में, अपने समाज में एक आनंदमय स्वर्ग की सृष्टि करेगी। देवजन होते हैं वो लोग वेद के इस कथन के माध्यम से जो स्त्रियों का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और अधम होते हैं वो लोग जो स्त्रियों के मन को फूल की भांति मसल देती हैं। तो वेद ये मंत्र कहकर के समाज में कितना सुंदर संदेश प्रसारित करना चाहता है कि हे इस सृष्टि के लोगों, ये स्त्री मेरी सृष्टि की कोमल कृति है, इसके साथ कोमलता के साथ पेश आना। तो अगर इस व्यवहार को माताएं अपने परिवार में प्रारंभ से बताना शुरू कर दें तो कोई कारण ही नहीं है कि इस तरह के दुर्व्यवहार की घटनाएं हमें देखने को मिली। और एक बिल्कुल टाइम हो तो मैं बोलूं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से हम काफी डिस्टर्ब भी हुए हैं। एक छोटा सा मंत्र। नहीं, क्योंकि बेसिकली इंस्टाग्राम पे 1 घंटे का सेशन होता है, तो जैसे ही 1 घंटा खत्म होगा हम एक दूसरा नया सेशन शुरू कर देंगे और ये कॉन्वर्सेशन हम आगे लेके जाएंगे पूरी। आप प्लीज। एक हम आपस में बातें करते हैं कि अच्छी तरह से बोलना चाहिए, सोच करके बोलना चाहिए। वेद मंत्र इस छोटी सी बात को भी अपने अंदर कहता है, सत्तु निवतितो न पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम अक्रत, कि जैसे सत्तु को छान करके शोध करके फिर हम प्रयोग में लाते हैं, हमें अपनी वाणी का प्रयोग भी वैसे ही करना चाहिए। जो सत्तु को छानते नहीं है वैसे ही पीते हैं तो फिर क्या होता है, पीते पीते हम करते हैं थू, क्योंकि वो क्षण मुंह में आते हैं, उन्हें हमें फेंकना पड़ता है। तो वेद ये संदेश देना चाहता है सत्तु का उदाहरण दे करके कि अगर तुम कल्याणी वाणी का व्यवहार नहीं करोगे, मधुर वाणी का व्यवहार नहीं करोगे, पवित्र वाणी का व्यवहार नहीं करोगे, तो इसी तरह से समाज में थूके जाओगे। जैसे सत्तू को बिना शोधे पिया जाए तो थूकना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे सूत्र हैं जो हमें हमारे जीवन को बहुत अच्छी प्रकार से आगे चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। केवल इतने छोटे से मंत्र नहीं है, ये विज्ञान से भरे हुए मंत्र हैं, बीज रूप में विद्याएं विद्यमान हैं। इसके लिए हमें वेद के अंगों का भी अध्ययन करना पड़ता है, तभी हम इसमें छिपी हुई विद्याओं को, इसमें छिपे हुए रहस्यों को प्रकट कर सकते हैं। बिल्कुल चाची, अभी इतने मतलब छोटी छोटी चीजों को शेयर करके आप, आई थिंक जो हमारी सारी ऑडियंस है जो अभी देख रही है और जो आगे भी देखेगी, उनको ये एक बहुत बड़ी, आप बेसिकली आप एक पाथ दिखा रहे हो, आप उनको एक रास्ता दिखा रहे हो कि किस तरह से वेदों को अपनी जिंदगी में लाके आप एक्चुअली सीख सकते हो। और बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगी कि क्योंकि मेरा ये जो श्रुति आउट लाउड जो पॉडकास्ट है, इसमें इसका पूरा इसका मैं जो टैगलाइन जैसे कहते हैं वो मैं बोलती हूँ कि वे ऑफ लाइफ। तो मुझे लगता है कि आपके साथ तो ये एपिसोड होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप वही बता रहे हो कि वे ऑफ लाइफ, वेदास इज काइंड ऑफ अ वे ऑफ लाइफ ओनली, इन अदर वर्ड्स। तो मुझे लगता है कि जीने का मार्ग बताया। बिल्कुल। तो आपका इस एपिसोड पे आना, मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप बैठ के हमारे साथ ये सारी बातें कर रहे हो, और आपने वेदों के बारे में अभी जो इतना बताया, अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है, बट हाँ जितनी नॉलेज अभी आपने शेयर के लिए थैंक यू। और आई एम प्रीटी श्योर कि सारे जो ऑडियंस वाले भी लोग हैं उनको भी, उनकी तरफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि ये सब मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल कॉन्वर्सेशन हो रही है। धन्यवाद मेरा नहीं है सनी, धन्यवाद की पात्र तुम हो
जो इस बात को इस मंच पर लेकर आई हो ताकि लोगों की शंकाओं का निवारण हो सके कि वेद गडरियों के गीत नहीं है, वेद हमें जीने का संदेश देते हैं, इसे इसलिए हम पढ़ें। वेदों में बहुत सारी विद्याएं हैं, इस छोटे से प्रोग्राम में बहुत सारी बातों की चर्चाएं नहीं हो सकती, मैंने संकेत मात्र में उस ओर केवल इंगित किया है कुछ विशेषताओं। चाची, अभी आपने बताया हमें पूरा वेदों के बारे में और आपने हमें कुछ पंक्तियां उसमें से बताई जो कि हैं जो कि बहुत छोटे छोटे, जैसे एग्जाम्पल आपने दिया कि कैसे सत्तू के साथ कंपेयर किया गया है और स्त्रियों के बारे में किस तरह से बोला गया है, और उससे पहले आपने बताया था कि किस तरह से वेदों में बोला जाता है कि हमें सूरज और चंद्रमा से भी चीजें सीखनी चाहिए। तो इतनी प्यारी प्यारी, इतनी बेसिक सी चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ से मिसिंग है और हमें पता नहीं है कि ये सब कुछ हमें वेदों के द्वारा सीखना को मिल सकता है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहूंगी वो थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे हम जाते हुए अगला क्वेश्चन उठाएंगे। और क्योंकि मैंने आपकी फोटो देखी हुई है जिसमें आप थिएटर कर रहे हो, आपकी एक वो फोटो है, और बाद में आपसे बात करके पता चला कि वो सिर्फ एक नॉर्मल थिएटर नहीं है, वो एक संस्कृत का प्ले है जो आप कर रहे हो। तो मैं उस बारे में आपको वहां पे थोड़ा आपके पास में ले जाना चाहूंगी, और किस तरह से वो हुआ, कैसे आपकी रिहर्सल्स होती थी, क्या होता था वो सब, प्लीज आप थोड़ा सा बताओ। हाँ, ये थिएटर से पहले मैंने रेडियो स्टेशन पर कुछ संस्कृत नाटकों में भाग लिया था। हमारी डायरेक्टर हुआ करती थी डॉक्टर रत्नम। उन्होंने एक जो संस्कृत के नाटक वो रेडियो के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा करवाए जाते थे, तब टीवी का इतना प्रचार नहीं था। तो हमने कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और दूसरे राइटर्स के द्वारा लिखे हुए भी प्लेज में पार्टिसिपेट किया था। और डॉक्टर कमला रत्नम जो हम लोगों से बहुत प्यार रखती थी, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे माध्यम से मुझे उनको याद करने का मौका मिला, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने एक संस्कृत नाट्य मंच की स्थापना की थी। उसमें हम सभी लोगों को इकट्ठा किया जो आकाशवाणी के नाटकों के माध्यम से उनके साथ जुड़े हुए थे। तो एक चारु दत्तम नाटक भास का उन्होंने उसकी रिहर्सल हमारी करवाई थी, और काफी लंबे समय तक रिहर्सल चली थी क्योंकि सभी लोग काम करने वाले थे। मैं भी अपने स्कूल खत्म करने के बाद वहां पहुंचती थी। भारतीय विद्या भवन में हमारी रिहर्सल्स होती थी। अच्छा। और अभिनेता जो एक्टर्स थे आते थे, अपना अपना पार्ट करके चले जाते थे क्योंकि सभी के लिए एकदम एक टाइम पर इकट्ठा होना मुश्किल होता था। सभी की अपनी व्यवस्थाएं थी। तो बहुत अच्छा लगता था जब उन रिहर्सल्स में जाते थे। इसके बाद उस नाटक के फिर कई मंचन हुए थे। श्रीराम सेंटर नॉर्थ प्लेस में हुआ, आजाद भवन में हुआ। कोई डेलीगेट्स बाहर से आए तो डॉक्टर रत्नम क्या करती थी, कहती थी भाई मेरी टीम है, इनका अभिनय जरूर करवाना है। तो बहुत अच्छा लगता था उन के नाटकों में भाग लेकर के। उसके बाद धीरे धीरे वो कम होता गया। जब हम अपने गृहस्थ में घुस गए, तुम बच्चों के साथ घिर गए, तो ये संस्कृत थिएटर कम हो गया, लेकिन थिएटर अभी भी चलते हैं, लोग नाटकों में भाग लेते। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे को भी ये मौका मिला कि मैं संस्कृत नाटक के मंचन में रहूं। तो चाची, आपकी उस टाइम पे एज क्या होगी जब आपने थिएटर बेसिकली, जब उस ड्यूरेशन में? 23-24 साल। अच्छा। और जैसे आप बता रहे हो कि रिहर्सल्स काफी चली थी, तो आपका जो फर्स्ट प्ले, जो फर्स्ट आपका जो स्टेज पे आपका जो हुआ था प्ले, कितना टाइम तकरीबन रिहर्सल्स के बाद हुआ था? और वो जो फर्स्ट टाइम जब आप स्टेज पे गए और आपने अपना रोल निभाया, तो वो फीलिंग कैसी थी? रिहर्सल्स नाटक शुरू होने के पहले 1 महीना तक चली हैं। उसके बाद एकदम शुरू हो गई थी। उसके बाद दूसरी जगह जब हुए उसके तो थोड़ा टाइम लगा था। तब 2-3 दिन की रिहर्सल से फिर दोबारा सारे अभिनेताओं को तैयार कर दिया जाता था टेलीग्राम दे करके। उस समय टेलीफोन की सुविधा भी सब घरों में नहीं होती थी, तो सबको इकट्ठा करके
दोबारा रिहर्सल करवा करके फिर उसका मंचन किया जाता था। अच्छा लगता था कि हम भाषा के हिस्से हैं, जो हमारी भाषा है। मेरे लिए स्टेज पर जाना कोई नई बात नहीं थी। स्कूल कॉलेजेस में मैं स्टेज पर जाती रही, स्टेज फियरिंग वाली कोई बात नहीं थी। अच्छा लग रहा था कि उस हॉल में हमें करने का मौका मिल रहा है, जो दिल्ली का एक सुप्रसिद्ध हॉल है, एक प्रतिष्ठित हॉल है। और हमारे सारे प्रोफेसर संस्कृत के जो हमें पढ़ाते थे, एमए करने के बाद जो हम काफी उनसे संपर्क में छूट गए थे, वो भी देखने के लिए आए। उन्होंने शाबाशी दी, साधुवाद दिया, अच्छा लगा, तुम्हारा मंचन अच्छा था। तो उसकी मधुर यादें आज तुमने तरोताजा कर दी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए तो ये भी एक, अभी जैसे आपने बताया कि थिएटर से पहले आपने रेडियो पे भी जैसे संस्कृत के जो प्लेज वगैरह जो आपने करे हैं, तो वो भी जान के मुझे बहुत, मतलब क्योंकि यही बात है कि जैसे ये चीजें हमेशा मिसिंग आउट रही हैं, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कभी ऐसे कॉन्वर्सेशन हुई नहीं, तो कभी ये पता नहीं चला। तो चाची सर, आपका जैसे जो, अब थोड़ा सा हम रेडियो की बात भी करते हैं, तो उसका आपका वो किस तरह से, वो थोड़ा अगर आप बताना चाहो कि स्टूडियो में जैसे बैठ के वो चीजें, क्योंकि वो लाइव ही होता होगा। नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग होती थी पहले। अच्छा। 2 दिन रिहर्सल ये मिलते थे हम्म। स्टूडियो में। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग होती थी और बता दिया जाता था कि इस दिन ये प्रसारित होने वाला है। तो हम भी सब जगह शोर मचा देते थे, भाई हमारा नाटक आ रहा है, देखना सब लोग। ना होता है रेडियो में, हाँ। वॉइस देना होता है रेडियो में। तो बिल्कुल मंच वाला अभिनय तो नहीं होता, लेकिन हाँ। उस तरह की फीलिंग ला करके उस अभिनेता को अपने अंदर जिंदा करके वॉइस में एक्सप्रेशन देने की कोशिश होती थी। तो वो भी एक अच्छा अनुभव था। बिल्कुल। मैं वही बोल रही थी कि काश किसी तरह से ऐसा अगर हो सकता होता कि वो रिकॉर्डिंग्स अगर किसी तरह मिल जाती होती और वो दोबारा एक बार अगर सुनने को मिलता होता। चाची पता नहीं, मैं तो पक्का कोशिश करने वाली हूँ किसी तरह से कि कोई अगर कुछ पता वता करके अगर इतने साल पुरानी अगर ये रिकॉर्डिंग मिल जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। दोबारा किसी तरह से अगर उनको मैं अपनी जवानी की आवाज तो सुनूंगी। हाँ। कुछ पॉसिबिलिटी है कि ये चीजें अगर रिस्टोर करके दोबारा सुनी जा सके, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई चीज हो सकेगी। कसा रहे थे संस्कृत के रेडियो से। उस समय इतनी सुविधा नहीं थी कि हम उसे रिकॉर्ड करके रख सकते। हाँ, एडवांस नहीं थे हम। बिल्कुल। पर जान के बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये भी आपका लाइफ में एक एक्सपीरियंस रहा है, और पूरा बेसिकली आपने इतनी सारी चीजें संस्कृत से रिलेटेड करी हैं जो कि हमें कभी पता ही नहीं थी। इसी बात में चाची, मेरे को एक चीज और अभी याद आई कि अदिति ने नीचे अभी मेंशन किया था आपसे पूछने के लिए कि अगर आप थोड़ा सा संस्कृत अंताक्षरी के बारे में बताओ। अच्छा, अंताक्षरी होती है जैसे हम फिल्मी गानों की करते हैं, संस्कृत की भी अंताक्षरी होती है। जब हम लोग कॉलेज में थे तो अंताक्षरी की प्रतियोगिताएं होती थी, जैसे स्पीच कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, रेसिटेशन कंपटीशन है। इस तरह से इंटर कॉलेज अंताक्षरी कंपटीशन भी होता था। अच्छा। मुझे तुम्हें बता के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने अंताक्षरी की बात शुरू की है। हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना हुआ है अपनी पुरानी सहेलियों का, जो अंताक्षरी व्हाट्सएप पर ही खेलते हैं। चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजें, चाहे वो अपना श्लोक लिखें। जैसे हम फिल्मी गानों में सबसे लास्ट वर्ड से गाना शुरू करते हैं, संस्कृत जो थर्ड चरण होता है, तीसरी लाइन होती है, उसके पहले अक्षर शुरू करना होता है। क्योंकि संस्कृत के श्लोक ज्यादातर माँ, विसर्ग, हा इसी से ही खत्म होते हैं। तो तृतीय का पहला शब्द लिया जाता है और वो अंताक्षरी अखंड रूप से पूरा दिन चलती है। सबसे पहले हाथ में व्हाट्सएप लगा, उसने एक श्लोक बोल दिया, लिख दिया, छोड़ दिया। जिसने उसके बाद व्हाट्सएप देखा, उसने देखा अच्छा यह से श्लोक बोलना है, और उसने यह से
बोलना शुरू कर दिया। फिर अगर कोई उस समय वहां पर अवेलेबल है तो वो भी अपना श्लोक बोल लेता था। या तो वो इकट्ठी 10-15 मिनट चलती है या फिर हाँ। उसको छोड़ दिया जाता है। अब लंच टाइम हो गया 3 बजे, कोई फिक्स टाइम नहीं है, जिसका जब मन करे इसमें पार्टिसिपेट करे और अपनी हाँ। ज्ञान को बढ़ाए। ओ जो वाह भूली चाची। यादें हैं, जो भूले दूसरे श्लोक हैं, जो कभी भूल गए हैं दूसरा याद करवा देता है, तो ये अच्छा लगता है। बिल्कुल। और चाची क्या यही वो लोग हैं जिनके साथ आप बता रहे थे कि आप संस्कृत में भी बातें जब आपको करनी होती है, ऐसे तो काफी क्या इनमें से जो वही अभी कुछ लोग हैं जिनको आप फोन कर? हाँ, जो व्हाट्सएप पर भी संस्कृत में ही लिखते हैं, इंग्लिश और हिंदी में चैट नहीं करते हैं, उनमें से काफी लोग हैं ऐसे। अच्छा। तो एक इसने हमें लोगों के साथ जोड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे, फिर से यहाँ पे वो लाइन रिपीट करनी पड़ेगी, एतत् रुचिकरम। मरियम अपनी रोच से ठीक है चाची। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो है आपकी बुक के बारे में जो आपने ऑथर कर रखी है बेसिकली, जिसका नाम है ब्रह्म की राह पर। ब्रह्म की राह राह पर। में तो हाँ, तो बेसिकली ये आपने कब लिखी और कैसे लिखी, क्या इंस्पिरेशन आपका इसके लिए रहा था, तो वो थोड़ा सा मैं आपको फिर से आपके पास में कहीं थोड़ा लेके जाना चाहूंगी और इस बारे में वार्तालाप करना चाहूंगी। किताब का जो पब्लिकेशन हुआ था वो 2005 में हुआ था। बेसिकली ये किताब कुछ वैदिक मंत्रों के कलेक्शन पर उसकी एक्सप्लेनेशन है, जो हमारी वैदिक उपासना पद्धति में होती है। वैदिक उपासना पद्धति के अनुसार हमें किन मंत्रों के द्वारा अपने ईश्वर की आराधना करनी है और वो मंत्र किस तरह से हमें उपदेश देते हैं, उसकी व्याख्या मैंने इसमें की थी। उसकी व्याख्या को मैंने कई बार स्टेज पर कुछ लोगों के साथ शेयर किया था आर्य समाज मंदिर में। तो उसके बहुत सारे नोट्स मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, तो मुझे लगा कि इसको एक पुस्तक का आकार दे करके पब्लिश करवाना चाहिए। इसलिए मैंने ब्रह्म की राह में नाम दे करके उस किताब को पब्लिश करवाया था। एक बात मैं और यहाँ स्पष्ट कर दूं कि उसका नाम मैंने ब्रह्म की राह में क्यों रखा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि इस जीवन का लक्ष्य है भगवान को पाना, लेकिन हर एक को भगवान मिलता तो नहीं है। तो वैदिक चिंतन क्या कहता है कि ब्रह्म तक पहुंचने पर हमें किन किन स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर हमें लिफ्ट से भी ऊपर पहुंचना है तो एकदम तो एक फ्लोर नहीं आ जाएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाद ही हम 8वें फ्लोर पर पहुंचेंगे। सीढ़ियों से भी जाएंगे तो एक एक सीढ़ी चढ़ करके हम ब्रह्म तक पहुंचेंगे। तो हमने मंत्र 20 मंत्र 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके पढ़ लिए तो उससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, वो नहीं है। उस मार्ग पर चलने के लिए हमें किन किन रास्तों से गुजरना है उसकी चर्चा इस पुस्तक में की गई थी। कभी अकेले बैठोगी तो इस पुस्तक के बारे में फिर जरूर बताऊंगी। बिल्कुल चाची। अच्छा, तो ठीक है, तो बेसिकली आपका जो इंस्पिरेशन ये बुक लिखने के लिए रहा था वो यही था कि आपने ये कई जगहों पे इस बारे में चर्चा करी थी और फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप इसको एक बुक का फॉर्म दे दोगे। ठीक है। ठीक है चाची। अच्छा, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वो बेसिकली ये है कि बीच में कुछ साल ऐसे आए थे जहाँ पे स्कूल्स में जैसे हमारी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज जो हुआ करती थी वो संस्कृत को रिप्लेस कर दिया गया फ्रेंच जर्मन इन सारी लैंग्वेजेस से। तो आई थिंक वो कुछ साल ऐसे थे जहाँ पे संस्कृत कहीं ना कहीं खो गई थी, मतलब गई नहीं थी, बस खो गई थी, कहीं खो गई थी। तो वो कम हो इसकी गया था। हाँ, तो इसका बेसिकली उस टाइम पे आप क्या कहना चाहोगे कि इसकी वजह क्या हो सकती है और क्यों वो थोड़ा सा आया डिफरेंस? अच्छा क्वेश्चन पूछा है सनी। हमारे संस्कृत में एक श्लोक बोला जाता है,
यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति। तो जिस मनुष्य के पास वित्त है वो धर्मज्ञ है, गुणज्ञ है, उसको लोग पंडित मानेंगे, श्रुतवान मानेंगे, बड़ा ज्ञानी मानेंगे और सोचेंगे कि बस वो उसकी एक झलक मिल जाए, वही उसी को मंच पर बोलने के लिए भी बुलाया जाएगा, उसी को दर्शनीय भी माना जाएगा। और सारे जो मनुष्यों के गुण हैं सिर्फ एक चकाचौंध पर आश्रित हैं, ये इस श्लोक का मतलब है। तो कुछ ही कारण रहा संस्कृत के कम होने का, क्योंकि जब संस्कृत को रिप्लेस किया गया दूसरी लैंग्वेजेस से तो दूसरी लैंग्वेजेस की तरफ झुकाव हुआ, तो वो कम हो गया, उससे नौकरी मिलने की उम्मीदें कम हो गई। तो लोगों ने सोचा कि फिर संस्कृत न पढ़ें, क्योंकि संस्कृत पढ़ करके हमें जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि हम चयन तभी करते हैं जो विषय हमें ज्यादा अर्थ प्रदान कर सकता है, जिसकी समाज में, जिसकी फाइनेंशियल मार्केट में बड़ी डिमांड होती है। संस्कृत की वो डिमांड नहीं है, इसलिए वो कम हो गया। इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि संस्कृत अगर अर्थ नहीं देती तो संस्कृत हमें ज्ञान नहीं देती, क्योंकि हम उसी तरफ भागते हैं जहाँ अर्थ मिलता है, ज्ञान की तरफ कम भागते हैं। यही विडंबना संस्कृत के साथ है, मेरे ख्याल से यही कारण रहा है। क्योंकि वही मुझे अपने बचपन में याद है कि 6, 7, 8 में जैसे संस्कृत उस टाइम पे सीखी जाती है, तो उस टाइम पे हमने सीखी। 9, 10 में मैंने मतलब पर्सनली मुझे ये चीज पता है कि फैमिली में सब संस्कृत ले रहे थे, क्योंकि आपसे पढ़ने को मतलब एक वो ऑप्शन था कि ठीक है अगर संस्कृत ले रहे हो तो चाची हैं और चाची से जाके आप पढ़ सकते हो, चाची से आप पढ़ोगे तो इजीली 100 on 100 तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। दैट्स द थिंग दैट यू आर एमिंग टूवर्ड्स। बट मैं उस टाइम पे आप ये कह लो कि पीयर प्रेशर में आके या अपनी फ्रेंडशिप में आके मैंने हिंदी ले ली थी, और मैं समहाउ 9th और 10th वाला जो संस्कृत होता है वो मैंने मिस आउट कर दिया। बट धीरे धीरे आगे आगे सालों में बढ़ते बढ़ते मैंने ये देखा कि हाँ संस्कृत किसी तरह से थोड़ी थोड़ी एक बैक सीट लेती चली गई। बट अब जैसे फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे यही आता है कि अब जैसे कहीं ना कहीं उसका रिवाइवल हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने किसी न्यूज में भी देखा था कि यूके के स्कूल्स में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, वहां पे बच्चे एक्चुअली पूरा जैसे कहते हैं ना वो पूरे रेसिटेशंस वगैरह प्रॉपर संस्कृत में कर रहे हैं। तो वो रिवाइवल हो रहा है, बट अभी भी शायद धीरे धीरे हमारी, ये बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे ये बात बोलते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी कंट्री को ही थोड़ा कैचअप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बट होपफुली नजर आ रहा है इन नियर फ्यूचर कि वापस वहां हम दोबारा पहुंच जाएंगे। एक तो हम लोगों की कुछ मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है हम वो कर लें, वो अच्छा होगा। जाता हमारे यहाँ से है, जब वेस्टर्न की स्टैंप लग जाती है तो हम उसको अपनाने के लिए उतावले हो जाते हैं। इसी तर्ज पर ही सही संस्कृत रिवाइव तो हो। हाँ, हमारे मंच के माध्यम और मंचों के माध्यम से संस्कृत की जानकारी जैसे लोगों को मिलेगी, संस्कृत की विशेषताओं को समझते हुए इसको अपनाना चाहेंगे तो अवश्य ही इसका प्रसार होगा। तो श्लोकांश कहा जाता है गुणैर ही सर्वत्र पदम निधीयते। संस्कृत का महत्व कम हुआ लेकिन इसमें गुण हैं, इसका साहित्य समृद्ध है, इसकी व्याकरण वैज्ञानिक है, इसकी व्याकरण कंप्यूटर के लिए उपयुक्त मानी गई है। कंप्यूटर के साथ जैसे ही इस भाषा को जोड़ दिया जाएगा तो इसकी महत्ता लोगों को पता चलेगी, तो अपने गुणों के कारण ही संस्कृत अपना स्थान स्वयं ही बना लेगी। बिल्कुल। अच्छा चाची, यहाँ पे ना मुझे आपसे 2 बातें करनी है, बेसिकली 2 डाउट्स हैं मेरे। और उससे पहले एक ऑडियंस में ऋषभ शिवा का फ्रेंड है, उसने कमेंट किया है कि सनातन धर्म के बारे में पढ़ा है, सुना है, समझा है, लेकिन हमेशा बहुत मिसअंडरस्टूड है। आज मौका मिला है, समझना चाहता हूँ। तो मैं
आपको फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपके जरिए बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें सीखने को समझने को मिल रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर उनको ऐसा सुनने को मिला है, उनको लगता है कि ये अच्छा है, इसके बाद भी मैं तुम्हारे माध्यम से उनको ये बात कहना चाहूंगी कि उन्हें अगर लगता है कि मैं उनकी कुछ भ्रांतियों का निराकरण कर सकती हूँ या उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे माध्यम से या पर्सनली भी मेरे से मिल सकती हूँ। ये कह रही थी कि ऋषभ, अगर फिर मतलब इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग, तो या तो मेरे थ्रू या फिर चाची से डायरेक्टली कांटेक्ट करके यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस। तो चाची, यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चंस हैं जो मैंने थोड़ा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन से या फिर मुझे कहीं से सुनने को आए हैं कि एक तो बेसिकली मैंने ये वीडियोस खुद देखे हैं कि लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर करे हैं जहाँ पे साउथ इंडिया में अभी भी संस्कृत एक्चुअली शायद नॉर्थ इंडिया से ज्यादा बोली जाती है। वहां पे एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें शायद या तो एक ऑटो ड्राइवर था या टैक्सी ड्राइवर था जो एक्चुअली संस्कृत में ही बात करता है। वो पूरा पूरा सब कुछ आपसे संस्कृत में बात करेगा। तो मुझे ये देख के थोड़ा सा लगा था कि ये चीज कैसे मिसिंग है। और उसके बाद अभी शिवा और भैया भी थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ा और कल्चर में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे भी हमने यही रियलाइज किया कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा गैप आया है व्हेन सॉर्ट ऑफ कंपेयर टू साउथ ऑफ इंडिया। ये हुआ है। मैं जानती हूँ कि वहाँ कुछ ऐसे गांव हैं जो पूरा गांव संस्कृत बोलता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो संस्कृतज्ञ रहे और उन्होंने ये सोचा कि हम अपने बच्चे से संस्कृत में ही बात करेंगे और उन्होंने संस्कृत में ही बात की। और उसने बताया कि जब सोसाइटी में हम जाते थे तो लोग कहते थे ये क्या बनेगा बच्चा, संस्कृत ही संस्कृत बोलेगा। ऐसा नहीं है। उस बच्चे की मातृभाषा संस्कृत थी, लेकिन वो दूसरी भाषाओं में भी निष्णात हुआ जैसे जैसे आगे बढ़ा। उसने अंग्रेजी भी सीखी, उसने हिंदी भी सीखी, लेकिन माता पिता की इच्छा ये थी, उनके पेरेंट्स की इच्छा ये थी कि हम अपने बच्चे के साथ संस्कृत में बात करेंगे। तो उन्होंने संस्कृत में बात की। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो अपने बच्चों के साथ संस्कृत में बात करते हैं। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, लेकिन अभी आम लोगों की नॉलेज तक वो बढ़ नहीं पाए हैं। वो कोशिश में हैं हम अपने मोहल्ले के बच्चों को लेकर के संस्कृत का प्रसार करें और फिर एक संस्कृत नगरम की स्थापना करके इसको मीडिया के माध्यम से आगे पहुंचाएं। तो साउथ में इसका ज्यादा प्रचार है। कुछ संस्थाओं ने प्रचार किया भी और लोग उसके साथ जुड़े भी, क्योंकि वहाँ थोड़ा संस्कृत के साथ जुड़ने का झुकाव है। शायद यही कारण रहा होगा, या जिन लोगों ने संस्कृत भारती जैसी संस्थाओं ने प्रचार किया, उनके कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया, यहाँ भी लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी लगता है वो प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है और बढ़ेगा आगे। हमारी शुभ आशंसा है उन लोगों के साथ कि वो इस प्रयास को बढ़ाएं। बिल्कुल। तो भाई थोड़ा जैसे अगर आप थोड़ा मतलब कल्चर्स को थोड़ा सा आप कंपेयर करो तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में शायद नॉर्थ में वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा रहा है और इसीलिए थोड़ा कहीं ना कहीं वो एक डिस्कनेक्ट रहा है और हुआ है। बारे में प्रयास कर रही हैं। हो सकता है अगले 5-10 सालों में ये बातें लोगों के सामने आएं तो बिल्कुल चाची, उन्हें अजीब नहीं लगेगा। तो शायद उन्हें हमारे इस एपिसोड की याद आए कि हाँ, उस समय कहा गया था कि ये संस्कृत आगे बढ़ने वाली है। ईश्वर करे ऐसा हो। बिल्कुल चाची। अच्छा चाची, अभी अगला जो मेरा क्वेश्चन है उसको पिक करने से पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हिंदू धर्म सनातन धर्म से अलग है? नहीं। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, वो सारे उसका मूल स्रोत वेद ही है। समय समय पर उसमें दूसरी बातें जुड़ती गई, लोगों को लगा कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। हम सबका, हम भारतीयों का, हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का जो धर्म का मूल स्रोत है वो वेद है या पुराण है। वेद के बाद पुराण लिखे गए। पुराणों में वेदों की बातों को समझा करके एक अभिनय के माध्यम से, काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया
और आगे चलकर लोगों ने उस काव्य को प्रधान बना दिया, लेकिन जो मूल बात थी उसको नहीं समझा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वैदिक धर्म में और पौराणिक धर्म में थोड़ा सा मतभेद हो गया, लेकिन ये धर्म बिल्कुल अलग नहीं। अच्छा तो बेसिकली वो जो थोड़ा सा डिफरेंस आया वो इस वजह से आया कि जो एक्चुअल मूल था वो लोग भूल के थोड़ा स्टोरीज में ज्यादा नहीं पाए, ले नहीं पाए। लगा कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों ही ईश्वर की उपासना करते हैं, एक साकार रूप को मानता है, एक निराकार रूप को मानता है, बस केवल इतना फर्क है। बिल्कुल चाची। एक मिनट, शायद ऊपर एक और क्वेश्चन आ रखा है, देखने दो। नहीं, ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा चाची, मेरा जो नेक्स्ट आपसे डिस्कशन है, जैसे अभी आप कंप्यूटर्स की जो बात कर रहे थे, तो जहां तक मुझे याद है, अगर मुझे नहीं पता, शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, मतलब मुझे एक्चुअली पता नहीं है, बट जो बोला जाता है कि कंप्यूटर की भी लैंग्वेज है जो डेसिमल्स में 10100 में है, उसका भी जो बेस है वो संस्कृत ही है। मैंने भी सुना है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए बहुत उपयुक्त मानी गई है और इसमें शोध चल रहे हैं। अभी निष्कर्ष रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, क्योंकि मुझे याद है शायद 5th-6th क्लास में शायद मैंने बुक में ये पढ़ा था, तो मुझे ये थोड़ा सा भी मेमोरी आई थी। ये जिन विद्वानों ने कंप्यूटर की भाषा के ऊपर काम किया था, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में इस चीज को स्वीकार किया था कि संस्कृत का व्याकरण कंप्यूटर के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। तो अभी कोई ठोस परिणाम हमारे सामने आया नहीं। अच्छा, ओके। अच्छा चाची, हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये भैया ने क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली कि द्वैता और अद्वैता में क्या डिफरेंस होता है। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब जो दो नहीं है। कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ आत्मा और परमात्मा है, या प्रकृति और आत्मा है, ये संसार जो दिख रहा है वो है। अद्वैत वाले मानते तत्व हैं। त्रैतवाद है वो जीवात्मा है जो हमारे शरीर के अंदर निवास कर रहा है, और ये सारी प्रकृति है, और इस प्रकृति को बनाने वाला परमात्मा है, वो अद्वैत है। ठीक है। आई होप भैया आपको ये बात चली है तो मैं बताती हूँ। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, कि ये प्रकृति एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। कौन है वो दो पक्षी? एक आत्मा है और एक परमात्मा है। एक तो फलों को खाता है क्योंकि उसे जो कर्म किए हुए हैं उन फलों का उपभोग करना है, और दूसरा परमात्मा है जो खाता नहीं है, केवल उसको देखता है क्योंकि उसको उसका फल आगे देना है। जैसे आप एग्जामिनेशन रूम में जाते हो, केवल लिखता है और इन्विजिलेटर केवल देखता है। वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा। आत्मा सुख दुख रूपी फलों को खाता है और परमात्मा अभिचाकशी केवल देखता है। अच्छा, हमारी कंप्यूटर वाली बात पे आद्या ने भी बोला है कि उसने भी सुना है कि संस्कृत जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है। तो आगे हम देखते हैं किस तरह से आगे इसके रिसर्च में क्या आगे बात पता चलती है। तो अब आगे आने वाले 4-5 सालों में मैं तो प्रे करती हूँ कि हमारे सामने कुछ सॉलिड रिजल्ट्स आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाची। और मैं अपनी ऑडियंस को भी यही बोलूंगी कि आप लोगों के पास 5-6 साल हैं और आराम से इन 5-6 सालों को यूज करके एक्चुअली इस जो वे ऑफ लाइफ हमने अभी पूरा डिस्कस किया है, जो चाची ने सब कुछ बताया है वेदास के बारे में, संस्कृत के बारे में, वो उसको और समझने की कोशिश करें। और 5-6 साल बाद, 10 साल बाद जब भी है, होपफुली हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सो बेसिकली चाची, आपकी लाइफ, आप एज अ टीचर, मोस्टली आपका एज अ टीचर आपका रोल रहा है, और अब आप
डिप्रेशन में नहीं हो। और तो बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या एज अ टीचर आपने इतने सारे बच्चों को संस्कृत सिखाई है, इतने सारे बच्चों को वो राह दिखाई है, और अब आप टीचिंग नहीं कर रहे हो, तो क्या आप वो पार्ट मिस करते हो, और अगर आप मिस करते हो तो फिर सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो? नहीं, ये कैसे कहा कि मैं टीचिंग नहीं करती हूँ। मैं स्कूल में नहीं पढ़ाती, मैं रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना। मेरे मोहल्ले में संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हम वीडियो कॉल पर ही पढ़ा देते हैं उनको। मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे अंदर का टीचर कहीं ना कहीं संतुष्ट होता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि मतलब आई एम सो हैप्पी टू नो कि चाची ये अभी तक चला आ रहा है। तो हाँ, मेरा मेरा ये पर्सनल मिथ था जो आपने अभी उसको तोड़ा है। अच्छा, तो अच्छा, लेकिन एक जो डिफरेंस है, जैसे एक क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना, तो क्या वो चीज कहीं ना कहीं वो आप मिस आउट करते हो, या फिर? ये लाइफ का फेज है। ये होना ही था, रिटायर होना होता है हर एक को। वैसा वातावरण नहीं मिलता, लेकिन कभी मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह के मंचों के माध्यम से बच्चों के आने से पढ़ाना जारी रहता है, लेकिन उस तरह का अभी मिला नहीं है। मिलेगा तो मुझे तब लगेगा कि हाँ, वाकई पानी की प्यास तो थी। कई बार लगता है कि हमें पानी की प्यास नहीं है, उस समय जो आनंद मिलेगा वो शायद अलग ही होगा। बिल्कुल चाची। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके लिए है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस हमारा रैपिड फायर जो सेशन है वर्ड एसोसिएशन वो होगा। तो बेसिकली व्हाई शुड वी बी प्राउड ऑफ संस्कृत? बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। दंडी ने अपने काव्यादर्श में लिखा, मुझे एकदम लाइन याद आ गई, संस्कृतम नाम दैवी वागन्वख्याता महर्षि। महर्षियों ने इसको दैवी वाणी कहा है। शायद हमसे कहीं भूल हो गई कि हमने कहा ये तो देवताओं की वाणी है, देवता जाने देवता पढ़े। ये देव वाणी है। महर्षियों ने इसको देव भाषा के रूप में स्वीकार किया। हमें इसके ऊपर गर्व होना चाहिए, और भारतीय होने के नाते तो हमें इस पर गर्व करना ही चाहिए। ये हमारे देश की भाषाओं की जननी है। जैसे हम अपनी माँ पर गर्व करते हैं, तो हमें अपनी भाषा पर भी गर्व करना चाहिए। इस भाषा में लिखा गया विशाल साहित्य का भंडार है। अगर हम इस पर गर्व नहीं करेंगे तो जैसे हम वंचित हुए हैं, हम वंचित होते रहेंगे, और इस विशाल साहित्य से हम विमुख हो जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियों के हाथ में जो ज्ञान लगना चाहिए वो लगेगा नहीं। हम इस पर गर्व क्यों ना करें? जब पाश्चात्य लोग हमारे यहाँ से ज्ञान ले जाकर के उसको पढ़ रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें मानना चाहिए कि जरूर इसमें कुछ खासियत है। इस पर हमें गर्व करना चाहिए। इसका व्याकरण वैज्ञानिक है, इसका साहित्य समृद्ध है, इसकी भाषा समृद्ध है, इसका जो उच्चारण जो कहा गया वही बोला जाता है। बाकी भाषाओं के साथ ऐसा नहीं होता। इतनी विशेषताएं हैं इस साहित्य की, इस भाषा की, तो हमें इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। भारतीय होने के नाते हम गर्व नहीं करेंगे तो हम दूसरों से इस पर गर्व की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल चाची। चाची, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सारी बातें करके, इतना कुछ सीख के। और क्योंकि अभी ये हमारा लाइव वीडियो सेशन है, सो बेसिकली हर एपिसोड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें एक होता है हमारा इंस्टाग्राम लाइव, और एक होता है हमारा ऑडियो कॉल, जो कि आपके साथ में नेक्स्ट वीक कनेक्ट करके, और भी जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपसे फोन पे बात करके वो सब रिकॉर्ड करके वो मैं पॉडकास्ट पे डालूंगी, जो कि यूट्यूब पे और स्पॉटिफाई पे हर जगह पे लोग वो हमेशा फिर सुन पाएंगे। और पर इस एपिसोड को खत्म करने से पहले इसका जो एक लास्ट पार्ट जो होता है, जिसे मैं वर्ड एसोसिएशन कहती हूँ, जिसको रैपिड फायर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या होगा, मैं एक वर्ड बोलूंगी और उससे रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी पहली चीज आएगी आपको बस वो बोलनी है। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं जो कि आपसे रेलेवेंट कोशिश कर रहे हैं। मैंने जितने रेलेवेंट रहे उतना अच्छा है।
तो आपका पहला वर्ड है अग्नि, आग, परमात्मा, अग्रणी, आपका आपका सेकंड वर्ड है वायु, पवन, अनल, वायुपुत्र भीम। चाची आप पर्यायवाची, मेरे को ना यहाँ पे अपनी वो क्लास याद आ रही है जिसमें एक वर्ड होता था और उसके पर्यायवाची याद होने करने पड़ते थे। और जैसे जैसे आप बोल रहे हो मुझे याद आ रहा है कि हाँ इसका यही हुआ करता था। आपका नेक्स्ट वर्ड है जल, वरुण, आपह, ठीक है। अभी यही आ रहा है दिमाग में। बिल्कुल चाची। अच्छा आपके लिए नेक्स्ट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत स्पेशल है, और ये है संध्या। संध्या, सायंकाल, संधि वेला, संध्या उपासना। और मेरी चाची। शनि की चाची। और मेरी चाची। अच्छा, और आपका लास्ट जो है, और वो है सूरज की पहली किरण। उषा, सूर्य की पहली किरण को उषा ही बोलते हैं। अच्छा मुझे नहीं नवीन पता था। चेतना दे। यही तो मैं ध्यान तो में ये आ रहा कहूँ, है। ये सेशन भी बहुत ज्यादा वो रहा है हेल्पफुल, कि बहुत सारे पर्यायवाची सीखने को मिल गए हैं और बहुत कुछ। चाची पूरा का पूरा ये सेशन बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मजा आया और आपने बहुत सारी नॉलेज शेयर करी है। और यहाँ पे आद्या ने भी लास्ट में बोला है कि संस्कृत हैज गिवन मेनी वर्ड्स नॉट ओनली टू हिंदी बट टू अदर लैंग्वेजेस एज वेल। तो संस्कृत जननी है तो देगी ना। बिल्कुल। तो बहुत, जैसे कहते हैं ना कि संस्कृत के बारे में इतनी सारी चीजें हैं जो कि हमें अदरवाइज नहीं पता थी, तो आज के सेशन की वजह से हमें वो सब सीखने को मिली है। और हमारा जो ऑडियो सेशन होगा उसमें भी आई एम श्योर हम बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो जैसे डलेगा वो रहेगा इटर्निटी, जब तक यूट्यूब रहेगा, जब तक ये सारी चीजें रहेंगी तब तक ये सेशंस रहेंगे। एंड होपफुली ये बहुत लोगों तक पहुंचेंगे और बहुत लोगों को सीखने को बेसिकली एक रास्ता दिखाएंगे। थैंक यू। थैंक यू चाची, नमस्ते। बाय। बाय बाय। Alright guys, I think it was an amazing session और बेसिकली एक पर्सनल रिलेशनशिप को एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे लाके कॉन्वर्सेशंस करना, सीखना और क्वेश्चंस पूछना, जहाँ पे बेझिझक होके आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और कोई बेसिकली मैं आई एम स्टिल वेरी ओवरवेल्म्ड विद दिस सेशन, क्योंकि चाची के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं जो ऑडियो कॉल है उसका भी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। और जैसे ही वो रिकॉर्डिंग होगी मैं अपडेट कर दूंगी, आई विल पुट इट एवरीवेयर, आई शेयर इट विद यू ऑल गाइस सो दैट यू कैन लिसन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेशन. And thank you for being so patient. Thank you for sticking by in the first initial 20 minutes when there was a technical glitch and things couldn't work out that easily, that smoothly. And also for extending this session for the second part so that, we could complete all these conversations about Sanskrit theatre, Sanskrit Antakshri, and the book that Chachi has written. So thank you guys. Thank you so much. And if you want to listen to all my other previous episodes, you can go to my YouTube, you can go to my podcast on Spotify and listen to all those episodes there. I will be uploading all the missing episodes as well and all the recent episodes as well. And have a beautiful weekend. Have a great weekend and thank you. And